Praise the Lord. Praise the Lord. We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से हम हर एक का स्वागत करते And a हैं। very warm welcome from the heart of Christ Church. हार्ट ऑफ क्राइस्ट कलीसिया की ओर से हम स्वागत करते हैं। We thank you for joining us at this moment. धन्यवाद करते हैं कि आप सब हमारे संग मौजूद हैं। Every work of ours are counted in the sight of God. हर कार्य परमेश्वर देखते हैं So I'm sure that we all have been blessed by what God has been done. और हम सब आशीषित हैं जो भी कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। Shall we rise unto our feet and look up to the Lord as we begin the service? और जैसे हम शुरुआत करते हैं आज की सभा को, आए हम सब खड़े रह जाएंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे। Are we all excited? क्या हम उत्साहित हैं? If you are excited, come on, say yes! Yes करेंगे। Amen. 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 Come on, hallelujah. We thank you, Hallelujah. Jesus. We thank you, Jesus. We thank you. We thank you. Let us reflect in our lives that what God has done in our lives. और आए हम अपने आप को आज जांच कर देखें जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। So before we begin with the prayer, let us turn to our Bibles from the book of Romans, chapter 8. रोमियो की किताब को हम खोलेंगे 8वां अध्याय। Can you please open up your Bibles and turn to the book of Romans, chapter 8. रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय। In your respective languages, please do read after me. So Romans chapter 8, verse 38 and 39. 38 और 39 वचन को हम देखेंगे। For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor the principalities of darkness, nor powers, nor things present, nor things to come, nor heights, nor depths, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। Amen. Amen. As a church, can we please read this together? हम As a साथ congregation? में एक कलीसिया होके हम साथ में ये चीज को वापस पढ़ेंगे। Start. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। If you receive it, say amen. Amen. You own this verse. ये वचन जो हमारे लिए है God is going to speak to us through this verse. और आज परमेश्वर हमसे ये वचन द्वारा बात जरूर करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Come on, church. Rise up. Let us look up to the Lord. Let us reflect our lives to what God has done in our lives. आए अपने आप को जांच कर देखेंगे कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया और हम कैसे हैं। People of God, especially those who are watching us live और right जो now. कोई लाइव स्ट्रीम को भी देख रहे हैं परमेश्वर के बच्चे, Wherever you are, you might be at your workplace, you might be at your home. Rise up and reflect that God has done mighty things in your lives. और आज भी जहाँ कहीं भी आप रहेंगे, घर में या बाहर, आज अपने आप को जांच कर देखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं। Because the word says, count your blessings day by day. क्योंकि वचन कहता है हर दिन गिनती करो तुम्हारी आशीष को। And how many of us are blessed that we could witness this wonderful कितने moment? सारे लोग आशीषित हैं कि आज ये दिन की गवाही दे सकते हैं। Hallelujah. We thank you, Jesus. Hallelujah. We thank you for this time you have given us, Lord. धन्यवाद यीशु समय के लिए जो आपने दिया। Lord, thank you for every wonderful things which you have blessed us in our lives. जो कुछ भी कार्य आपने किया उसके लिए धन्यवाद। Lord, as we begin the service, we reflect our lives into your precious और hands. जैसे आज की सभा की शुरुआत करते हैं, आज हम अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में देते हैं। We gaze into your loveliness, Lord. प्रभु आपकी ओर हम देखते हैं यीशु। We pray that bless us and fill us with the Spirit. आपकी आत्मा से हमें भर दीजिए। A Spirit which will enlighten us in our lives. एक आत्मा जो हमें उत्साहित करता है, नया मार्ग दिखाता है। Lord, we pray for all those who are empty-handed. Fill them in the name of जो Jesus. कोई खाली हाथ है उनको भरे यीशु के नाम से। Lord, let us not be pleasers of men, but let us be pleasers of the living God. प्रभु हम मनुष्य को प्रसन्न नहीं, केवल आपको प्रसन्न करने वाले लोग बने। Lord, we pray for everything you have given in our lives, जो Lord. कुछ भी आपने दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, we pray for the broken-hearted. We pray for the deceived. We pray for the dejected, Lord, that you are with them. नकारे हुए लोग, प्रभु टूटे हुए मन
जिसके भी पास है हर एक के ऊपर आप ध्यान कीजिए। Lord, thank you, Jesus, for all the wonderful things you have done in our जो lives. कुछ भी आपने हमारे जीवन में किया उसके लिए धन्यवाद हम कहते हैं। Lord, this day is a very precious moment as a church that we will be rejoicing, that we will be submitting your children into your precious आज hands, का Lord. दिन बहुत ही खास है प्रभु, हर एक को आपके बच्चों को आपके हाथों में हम देते हैं। Lord, this day is a token where we could acknowledge that who you are. प्रभु आज वो दिन है जहाँ हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। And we dedicate our church members into your precious हमारी hands. कलीसिया के हर एक सदस्य को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। Lord, let this church bring glory and honor to you, ये Lord. सभा जो है केवल आपको आदर और महिमा दे प्रभु। And let every knee shall bow and every tongue shall confess that you are the living हर God. घुटने टिके और हर जुबान कहे कि आप ही परमेश्वर हैं। And fill us with your spirit. Let us by your spirit so that we may walk in righteousness and not the foolishness in this world. प्रभु हम आत्मा में चले प्रभु और आपकी बुद्धि से चले, ताकि हम दुनिया जैसे नहीं लेकिन आप में हम चले यीशु। Once again, let this service be a blessing to many millions in आज this की world, सभा Lord. जो है वो हजारों हजारों के लिए एक आशीष बने। Though we are new, but we are not the outdated in our lives. प्रभु हम नए हैं तो भी हम गए हुए लोग नहीं हैं। Thank you once again for your grace and your mercies upon us. और प्रभु आपके अनुग्रह दया के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। Once again, we keep each and everyone into your precious hands. You take total हर एक control. जन को आपके हाथ में देते हैं, आप पूरी रीति से हमें चलाइए। And enlighten us as we worship you with truth and in spirit. जैसे हम आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, आप हमें प्रभु को आप चलाइए। Thank you once again. We give you all the glory and honor. In the name of Jesus we humbly हर pray. महिमा आदर केवल आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Give a loud shout to the Lord and say hallelujah. आइए लोग हालेलुया कहेंगे और ताली बजाएंगे। Amen. Hallelujah. Can we give the Lord a mighty clap offering? पूरी आत्मा और सच्चाई से अपने आवाज उठाकर हालेलुया। Hallelujah. So as we worship the Lord, let us all lift up our hands, our hearts, अपने पूरे हृदय के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि वो यहोवा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। यहोवा 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 यहोवा
वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाओ तो खुल जाएगा, यहोवा, यहोवा, यहोवा। Hallelujah. When we worship the Lord in spirit and in truth, जब हम प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, प्रभु हमारे बीच में मौजूद होता है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ भी आप खड़े हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, सभी के साथ मिलकर हम प्रभु यीशु की महिमा करेंगे। हालेलुया। चाहे वो जो भी मिल जाएगा, यहोवा, यहोवा, यहोवा। तू है यहोवा यीरे जो मुहैया करता है, तू है यहोवा शालोम जो हमें तसल्ली देता है। हालेलुया। तू है यहोवा यीरे जो मुहैया करता है, तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा यीरे जो मुहैया करता है, तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा, यहोवा, 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मदद हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा जिंदा खुदा, हमारे जीवन के जिंदा खुदा, हालेलुया, यीशु मसीह है। हालेलुया। विश्वास करने लोग बोलेंगे हालेलुया। जैसे आज हमने गाया, आज शैतान झुक जाएगा। हमारे जिंदगी में जो कुछ भी कार्य शैतान लेके आ रहा है, वो आज नाश हुआ है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोलेंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु जैसा है कोई नहीं है, उनके सम्मान में कोई नहीं है। हालेलुया।
कोई आ भी नहीं सकता हमारी जिंदगी में। हालेलुया। हमारे जीवन में उनके जैसे कोई भी कार्य कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। कैन वी ऑल लिफ्ट अप आवर हैंड्स टू गॉड। प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिया आज उनके सामने आराधना करने के लिए, ये सौभाग्य दिया। प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। आज इसी समय बहुत सारे लोग प्रभु से दूर भटके हुए हैं, प्रभु की नजरों से काफी दूर चले गए हैं। बट द लॉर्ड हैज बीन ग्रेशियस टू अस। कृपालु है कि उन्होंने हमें ये दया, ये कृपा दिया। ही गेव अस हिज ग्रेस and his mercy that we could stand today in his presence to worship him. Hallelujah. Our weaknesses, our sicknesses is nothing compared to what God has done in our lives. हमारे जो भी कमजोरियां हैं वो सब कुछ भी नहीं है। जो प्रभु ने हमारे लिए किया है उसके समान कुछ नहीं है। ये जो जीवन हम आज जी रहे हैं वो भी प्रभु की दया है, कृपा है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Lord. We praise you and we worship you, Father. Thank you, Jesus, for all the grace and mercy that you have been doing and that favor that you have been showing in our lives. We thank you, Master. आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We pray, Father, just as we worship you, जैसे हम आराधना करते हैं, हर एक जीवन की कमजोरियां, हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए यीशु के नाम से। The Bible says, let the weak say I am strong, let the poor say I am rich. We pray, Father, that every promise that you have for our life will be fulfilled in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. अब सब कुछ है हमारे जीवन में। थैंक यू लॉर्ड। We all lift our hands together. सभी अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे, प्रभु तू ही शांति का दाता है। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। सभी अपने हाथ
चलना तेरे ही वचनों से हमको है जीना तेरे ही कदमों पे हमको है चलना तू ही राह दिखाता है तू ही हमको चलाना है तेरी महिमा हम गाए सदा सभी अपने हाथों को उठाएंगे हालेलुया कितनी महान है यीशु तेरी करुणा तेरी बाहों में हम पाते हैं पनाह कितनी महान है हालेलुया कितनी महान है यीशु तेरी करुणा तेरी बाहों में हम पाते हैं पनाह तू ही जीवन देता
सदा सभी अपनी आवाज हालेलुया। तू ही शांति का राजा है, तू ही हमको चलाने वाला राजा है। हम आपके नीचे आपकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं प्रभु। We are ready, Father, to walk according to your word. We are ready to live according to what you expect us to live, Lord Jesus. We pray, Father, in the name of Jesus, to forgive every wrong thing that we have done against you, every wrong step that we have taken against you, हर गलत कदम जो हमने आपके विरुद्ध लिया है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, you said repent right now, Lord, according to your word. We pray, Father, we repent from all the consequences, all the wrong things that we have done in the name of Jesus. People of God, let us all lift up our voices, repent for all the wrong things that we have done in our thoughts, in our words, in our actions. जो कुछ भी हमने गलत किया उसके लिए अब भी हम क्षमा मांगेंगे यीशु मसीह के नाम से। सभी अपनी आवाज उठाकर everybody breathe and we say and we ask the Lord to forgive every sin that we have done in our lives. इस मिनट तक जो कुछ भी हम प्रभु के विरुद्ध किए उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। प्रभु के पवित्र स्थान में हम पाप के साथ, हम गलत चीजों के साथ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हम अपने आप को अभी समर्पित करेंगे। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus, thank you धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद करते सुंदर समय जो आपने दिया खुदा। आज भी आप एक महान कार्य हमारे जीवन में करने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज की सभा में आपने हम सबको इकट्ठा किया, आपके वचनानुसार चलाने के लिए आप तैयार हैं, उसके लिए धन्यवाद यीशु। We thank you Lord। जैसे हमने गाया प्रभु, आप ही शांति के राजकुमार हैं और आज भी आपकी शांति से हर एक जन को, हर एक परिवार को आप भरने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज से भी अब एक नया कार्य करने योग्य है, उसके लिए धन्यवाद। Thank you Lord that you are the Prince of Peace and we pray Lord that you may fill us with your peace, Lord Father. In every situation of our life, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आपकी शांति बढ़े प्रभु। अपने मुंह खोल के हम कहेंगे आपकी शांति बढ़े प्रभु। हर एक क्षेत्र में, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी शांति बढ़े यीशु, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं, आप तसल्ली देने वाले यहोवा हैं। We thank you Lord Father, we give you all the glory Lord Jesus। ये पूरे समय हम आपके हाथों में देते हैं। जैसे पासवान भी हमसे बातें करते हैं, हम मांगते हैं आप उनको ढक के, आप उनके द्वारा हमसे बात कीजिए यीशु। आज के दिन में भी पवित्र आत्मा हमारे कठोर दिल को निकाल कर एक मांस के हृदय से हमें भर दीजिए, ताकि हम आपके वचन को वैसे ही स्वीकारें यीशु। We thank you Lord as you do so. We give you all the glory, honor and praise. Take total control. ये पूरे सभा को हम आपके हाथों में देते हैं और आने वाले समय में जो कुछ भी यहाँ होता है, बपतिस्मा की सभा को और जो कुछ भी यहाँ होता है यीशु, हम आपके हाथों में देते हैं। आपके नाम की महिमा हो। जो निर्णय आपके लोग इस सभा में लेते हैं प्रभु, अंत तक पकड़ कर रखने के लिए पवित्र आत्मा आप उनको वो सामर्थ दीजिए। आप ऐसे ही करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। हर निर्णय को हम यीशु के नाम से बांधते हैं
और हम कहते हैं यीशु के नाम से कि हर शैतान के बंधन को जो आपके लोगों को बीच में आपको हमसे दूर करता है, हम यीशु के नाम से उसको बाहर निकालते हैं और मांगते हैं प्रभु, every decision that we take, every step that we take of faith, we pray that you may honor it, Lord, and help us to live a life pleasing to you. यीशु मसीह की पवित्र अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। एक जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमेन। हालेलुया। आइए हम सब बैठ सकते हैं। We welcome you all once again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से एक और बार हमारे का स्वागत करते हैं। We believe that as you began this service with us, that you have been blessed. और जैसे आप हमारे संग इस सभा में मौजूद हैं, हम विश्वास करते हैं आप आशीषित हैं। Even in yesterday's Bible study, we learned that we have to be prepared. और कल की बाइबल स्टडी में भी हमने पढ़ा कि हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। So how many of you are prepared for hearing the word of God सारे today? लोग तैयार हैं वचन को सुनने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Keep your Bibles ready. बाइबल को तैयार रखेंगे। So we welcome you from the Heart of Christ Church. और हार्ट ऑफ क्राइस्ट की कलीसिया से हमारे का स्वागत करते We हैं। are available online on Facebook and YouTube. और ऑनलाइन फेसबुक और यूट्यूब में हम मौजूद हैं। You can share this link with your family and friends so that they also will be blessed. और आप ये लिंक अपने इर्द गिर्द के लोगों, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर बांटिए ताकि वो भी आशीष पाए। Amen. आमेन। Put your hands together and let's जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और वचन की शुरुआत करेंगे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु को हम धन्यवाद देंगे क्योंकि उसका महिमा ये सब जगह भरा हुआ है। And we give God the glory because His glory has filled this place. पवित्र आत्मा हम सबको ऊपर करा रहा है। And the Holy Spirit of God is upon us. पिता परमेश्वर हम सबको देख रहा है। And the Father is watching over us. मेरे प्रियो, एक नया अभिषेक के साथ अभी परमेश्वर सबको ऊपर और देने वाला है। And my beloved God is going to fill us with a new anointing today. आज कलिसिया शुरुआत से लेके प्रार्थना से लेके आराधना लेके हर चीजों से पवित्र आत्मा हम सबके साथ में है। And as we began this service from the beginning to the end, we believe that the Holy Spirit of God is with us. और जो वचन में जो लिखा है, जो जगह में पवित्र आत्मा है, जो जगह में छुटकारा है, And the Word of God says, where the Spirit of the Lord is, there is जो liberty. जगह में चंगा है। There is healing. हालेलुया। Hallelujah. आज परमेश्वर बहुत महान कार्य करने वाला And है। even today, God is going to do आमीन। mighty work. Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. खुशी के साथ हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया का प्रभु धन्यवाद देंगे। जो मेरा प्रियो यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से जो देखने वाला है और सामने जो बैठा है, सबके लिए मैं आशीष देता हूँ। And we bless you all watching us and all seated here in the name of Jesus. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है And we serve a mighty God. और दयालु परमेश्वर And है। He is a gracious God. सबको पर प्रेम करने वाला परमेश्वर He is है। a God who loves each and every one of us. आज हम ये देख लेंगे, बहुत जन ये समझता है सिर्फ यीशु मसीह जूविस के लिए, मतलब जो इस्राएल के लिए खाली परमेश्वर करके बहुत जन अभी भी सोचता है। Even today, many people misunderstand thinking and assuming that Jesus came only for the Jews and He's the God of Israel. और परमेश्वर यीशु मसीह हम सबके लिए आया है। But we understand that Jesus came for each and every one of us. पुराने समय में क्या होता था, अलग अलग जातियों का हिसाब से परिवार चलते रहते हैं। And we see in the Old Testament, people were split according to their tribes. किसी किसी को कोई लो कास्ट समझता है, किसी किसी को ऊंचा कास्ट समझता And many a है। times people consider some to be some from the lower caste and others from the higher one. यीशु मसीह के समय में भी क्या हो गया हम देख लेंगे। And we will see what happened during the times of Jesus. अब देख लीजिए, हमारे यीशु मसीह जो पृथ्वी में सबके लिए जो आया है, And we know that Jesus came into this world for all of us. वो ऐसा नहीं है सिर्फ मुझे इस्राएल के लिए, नहीं तो यूविस के लिए, नहीं तो और किसी के लिए, सबके लिए परमेश्वर है। And Jesus came into this world not just for the Israelites or the Jews, but He came for everyone. आमीन। Amen. हम वचन में पढ़ेंगे जो योना 4 अध्याय, जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 से लेके पढ़ेंगे।
1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize but his disciples, he left Judea and departed again to Galilee. फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरिसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। यीशु मसीह ने वचन में जो लिखा है, यीशु मसीह ने बपतिस्मा नहीं दिया है। And it's mentioned in the word that Jesus never baptized anyone. उनका चेलों लोग मतलब वो लोग बपतिस्मा दिया है। And the disciples of Jesus is specifically mentioned हर that they जगह baptized. में नया बात सुन रहे हैं जो ऐसा यीशु मसीह ने बपतिस्मा दे रहा है। And we see that there are a lot of rumors spreading that Jesus was giving baptism. देख लीजिए उसी समय में जॉन बैप्टिस्ट ने क्या कर रहा था, हर जन उनके पास जाके बपतिस्मा लेता था। And we see that during those times people came to John the Baptist and they were baptized. वो किधर जो जोरदान नदी किनारे में जो रहता था, And we see that he was baptizing people at the river Jordan. और सब जन शहर से लेके उस तरफ नदी किनारे में जाता था बपतिस्मा लेने के And लिए। people from the cities traveled all the way. They went to Jordan and they were baptized through उसी him. समय में यीशु मसीह को कोई जानता नहीं है, And at that time people were not aware about Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा जो दिया है वही यूहन्ना का बस हर जन जाता था। And we see that Jesus himself was baptized through John the Baptist and he was the one to whom everybody used to go. अब देख लीजिए नेक्स्ट वचन में पढ़ेंगे। But he needed to go through Samaria. So he came to a city of Samaria which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. Okay. और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नामक रामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। हालेलुया। Hallelujah. अब देख लीजिए जो उसी समय में परमेश्वर पिता हमारा जो पिता यीशु मसीह वो सेवकाई करता था, चल के जाता था हर क्षेत्र पे। And we see that the ministry of Jesus was on foot, that he used to travel on foot from places to places. काफी समय हो गया, वो थका हुआ था, And we see that it's mentioned he was wearied because of the travel. प्यास लग रहा था। He's thirsty. तो याकूब का जो कुआं था उसका बगल में जाके वो बैठ गया है। And we see that he went and sat near Jacob's well. हम आगे पढ़ेंगे। A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." For his disciples had gone away into the city to buy food. इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उसे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। सब चेले लोग गया, किधर गया? भोजन लेने के लिए। We see that the disciples had gone into the city to buy food. एक दो जन जा सकता था। We could think that at least 1 or 2 could have gone. किसके लिए भोजन लाने के लिए गया? And for whom have they gone to buy food? यीशु मसीह के लिए भोजन लाने के लिए सब जन चला गया। And we see everyone has gone to the city to buy food for Jesus. हालेलुया। Hallelujah. देख लीजिए किस तरफ जो है सब जन मतलब परमेश्वर के ऊपर इतना प्रेम के साथ लोग चला गया। And we see that with love they have so much concern and they have together gone to the city. अब उसी समय में समारिया का जो स्त्री है वो जगह में आई पानी लेने के We लिए। see that there was a woman of Samaria who came to draw water from there. उस सामरी स्त्री ने उसे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। ये जो कहानी नहीं है, हकीकत यही है जो उसी समय से आज भी अपने देश में कोई मतलब वो किसी जाति के साथ में कोई संबंध ही नहीं करता है, कोई बात ही नहीं करता Now है। this is not a story, this is an incident that happened, and even today we see that there are people who discriminate against each other.
कोई कोई बोलता बड़ा, ये बड़ा जाती है, कोई छोटा जाती है, मतलब उनको बस कोई पानी पीता नहीं है, कोई लेन देन नहीं करता है। We see there are discrimination between castes where people are of high caste, low caste. They do not drink water from each other also. और सामने सामने बैठे भी नहीं है, They don't even sit in front of such और किसी का people. कुछ फंक्शन में कोई बुलाता नहीं है। And they do not invite the others also to their celebrations. अगर कोई बुलाए तो भी उनका अलग जगह में बिठाता है। And when they invite them also, they keep a specific area for them to be seated. ये देखो मेरा परमेश्वर ने किस तरह जो दयालु परमेश्वर है, वो जूइश होके सामरिया स्त्री का बस पूछ रहा है, मुझे पीने के लिए पानी दो। Jesus is showing as an example, being a Jew, he's asking the woman of Samaria, please give me some water. तो स्त्री बताती, जो आप जो है जूइश होके, इसराइल होके, और ये सामरिया स्त्री के साथ आप किस तरह जो पानी मांग रहा है करके वो सवाल पूछती है। And we see that she questions Jesus, saying that how can you be a Jew, being a Jew, ask me for a drink, whom I'm a Samaritan woman. इसमें जो लिखा है, जो मतलब ये सामरिया के साथ में कोई संबंधी नहीं करते, लेकिन वो बताती। And it's mentioned here, for Jews have no dealings with Samaritans. आगे यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, आमीन। Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. हालेलुया। हालेलुया। वो बता, तुम नहीं जानते, तुम्हारे पास पूछने वाला कौन है। You are not aware of who is asking you. हम परमेश्वर को जानना जरूरी है। You need to know who God is. यीशु मसीह के बारे में जानना जरूरी है, यीशु मसीह कौन है। And you need to know the identity of who Jesus is. परमेश्वर यीशु मसीह जो बताता है, अगर तुम जानते तो तुमको मैं कौन सी पानी तुमको पिलाने वाला है, तुम्हें पता होगा। And he's saying that if you would have known who I am, who asks you for a drink, I would have given you the living water. जो स्त्री की समझ में नहीं आई, And then we see that she did not understand. क्या बताती? The woman said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? हालेलुया। हालेलुया। वो बताती, हमारा जो पिता जो याकूब से तुम बहुत बड़ा है क्या? Are you greater than our father Jacob? और ये जो कुआं काफी गहरा है, एकदम नीचे है, लेकिन इसमें से पानी लेने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी बर्तन भी नहीं है। And she's saying that the well is so deep, you don't have anything to draw water also किस from तरह से it. आप जीवन के जो पानी पिलाएंगे? How are you going to give me that living water? हमारे जो पिता याकूब से भी आप बहुत बढ़कर है क्या? Are you so greater than our father Jacob? आगे Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंतकाल तक प्यासा न होगा। हालेलुया। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, थैंक यू और जीसस। जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये जो अनंत काल जीवन के लिए जो परमेश्वर जो पिता यीशु मसीह जो कहते हैं, तुम्हारे लिए जीवन का पानी तुम्हारे लिए चाहिए। And in order to receive, he's talking about everlasting life, and he's talking about the living waters that you need to receive. और ये जो जीवन का जो नदी है, मतलब जो पवित्र आत्मा किसका अंदर आने के बाद वो मरने तब तक हमारा अंदर रहना जरूरी है। And we see that the Holy Spirit of God, who's like the living water for us, he needs to reside inside of us till the end. परमेश्वर यीशु मसीह हमें जीवन के जो पानी देने के लिए, पवित्र आत्मा देने के लिए वो तैयार है। And Jesus is willing to give us this living water. He is willing to give us his Holy हमें Spirit. तैयारी रहना है, And we have to be prepared to हमें receive. संभालना है। We have to take care. अब देख लीजिए, बहुत जन क्या करता है, पवित्र आत्मा एक बार परमेश्वर में आता है
और परमेश्वर से पुकारता है, रोता है, परमेश्वर का आत्मा मांगता है। And many people come to Christ, they come and then they ask the Lord for His Holy Spirit. लेकिन धीरे धीरे उनका जो जो परमेश्वर के साथ जो प्रेम है, कभी कभी कोई कोई रीजन से पीछे मुड़ के जा रहा And है। as time goes, many a times their love for God gets cold and they turn back from God. अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना है तो हमें क्या होना है? पवित्र जीवन बिताना है। And if you want the Holy Spirit of God to abide and remain in you, you need to live a holy life. और हम इस तरफ जो परमेश्वर यीशु मसीह वो स्त्री के साथ जो बात करने के समय में And here like this, in this such a way, Jesus is talking to her. वो बता रहा है The आगे। woman said to him, Sir, give me this water that I may not thirst, nor come here to draw. Jesus said to her, Go call your husband and come here. वो बता रहे जाके तुम्हारा पति के बुला के आ जाओ। The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, You have well said, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you have spoken truly. स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उसे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। अब यीशु देख ने लीजिए वो जो पहले क्या बता रहा है, पानी मांग रहा था, तो उसके बाद में जो बता रहा है, तो प्रभु अगर इस तरफ जीवन का जो नदी जीवन का जो पानी मुझे देना है तो मुझे दे दे, हमेशा के लिए फिर वापस मैं ये गोवा में नहीं आना है। मतलब वो दुनिया का जो पानी के बारे में वो समझती है। And we see that she was thinking and considering about the worldly water. She's saying that if you give me this living water, I don't have to come always to this well to draw. और जाके तुम्हारा पति के बुला के And Jesus says that go call your husband and come here. वो बोला मैं I have no husband. मेरा पति नहीं है बोल रहा है। यीशु मसीह के पास छुपाने की जरूरत नहीं है। And we can never hide anything from Jesus. कितना उनके जीवन में जो छुपा हुआ जो सीक्रेट है, सब कुछ प्रभु को मालूम है। And we see that any secrets that are hidden, God knows everything, is aware about it. जाके तुम्हारा पति के बुला के आ जाओ। He says that go bring your husband and come. वो सीधा क्या करती, मेरे पास पति नहीं है। And she says, no, I don't have a husband. कितना पति है परमेश्वर ने बता रहा है। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उसे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। अरे बाप रे, कितने पति? 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। परमेश्वर के पास कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। We can never hide anything from God. परमेश्वर जो बता रहा है, तुम्हारा जो 5 पति थे, लेकिन अभी भी तुम्हारे साथ में वो भी तुम्हारा पति नहीं, तुमने सही बात किया है। And he's saying that you had 5 husbands. The one who's with you is not your husband, so rightly you say that you have no husband. जो तुरंत वो स्त्री को मालूम पड़ गया ये जो सादा व्यक्ति नहीं है, And then the women realized that this man is not a normal man. क्योंकि उनके बारे में सादा व्यक्ति है, तो वो क्या बोले, हाँ ओके तुम्हारे पास पति नहीं है करके वो उनके बारे में कुछ बात करता था। And लेकिन if he would be an ordinary man, then he would just say, oh, you don't have husband, and he would have gone to the next topic. परमेश्वर ने उनको बताने के बाद वो स्त्री समझ गई ये जो है सही बात कर रहा है। And then after that, this woman realizes that what he's speaking is truth. आगे The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करने चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। हालेलुया। परमेश्वर जो कहते हैं हम किसका आराधना करते हैं तुम जानते हो। And here Jesus is saying, you do not know who you worship. We know who we worship. सब जन बोलेगा हम जानते हैं किसको हम आराधना करते Come हैं। on, say it. We know whom we worship. वो Hallelujah. जीवन का पिता है, जीवन देने वाला परमेश्वर And we है, worship the living God. He's a God who gives life. और उनका हम आराधना करते And हैं। we worship Him. हालेलुया। Hallelujah. जो उसको किस तरफ से आराधना करने करके आगे के वचन में पढ़ेंगे। But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth.
For the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से सब जन करेंगे। बोले आत्मा और सच्चाई सच्चाई से। Spirit and truth. क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा के साथ, मतलब आत्मा और सच्चाई के साथ किसको आराधना करना है? आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से, जो पवित्र परमेश्वर को। And we see that God is spirit. God wants us to worship in the spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा में है And the Bible says God is spirit. और उनको जो आत्मा में जो परमेश्वर जो रहते हैं, उनको हम आत्मा के साथ उनको आराधना करना And है। God who is spirit, we must worship him also in spirit. पूरा मन से, With all of our hearts, पूरा सच्चाई दिल से, with a truthful heart, और परमेश्वर को हम आराधना करना है। we are supposed to worship him. आमीन। Amen. कोई जो है, कोई बहाना बना के अपन आराधना, दूसरा भी प्रार्थना करता है, हम भी प्रार्थना करता है, दूसरा भी कलिसिया में जाता है, हम भी कलिसिया में जाता है। इस तरफ तो नहीं है। अपने पूरे मन से, पूरा दिल से, पूरा ताकत से परमेश्वर को हम आराधना करना है। And we are not supposed to worship just because others are worshiping, others are attending church, we also attend church. No, we are supposed to worship the Lord with all of our hearts. परमेश्वर यीशु मसीह क्यों बता रहा है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा में है और हमें आत्मा के द्वारा हम बात करना, प्रार्थना करना है। And he says that God is spirit, therefore we who worship him must worship in spirit and truth. तो इसी से हमें क्या पता है, मालूम पड़ता है? And what do we understand out of this? क्या होता है? हमें किस तरह से आराधना करना है? We must be filled. आत्मा के साथ में। अगर आत्मा के साथ में आराधना करना है तो क्या करना है, क्या होना है? कम ऑन। And if you have to worship in spirit, how are you going to worship? सच्चाई से, आत्मा से भर के। You must be filled with the spirit. That's when you can worship in the ताली बजाइए प्रभु spirit. के लिए। Hallelujah. तो अगर आपका पास पवित्र आत्मा नहीं है तो कैसे आत्मा से प्रार्थना करेंगे? And if you do not have the Holy Spirit residing inside of you, how can you worship in spirit? सही है ना? It's अपना पास understandable. पवित्र आत्मा नहीं है तो कैसे पवित्र आत्मा से बात करेंगे, And if we प्रार्थना are not करेंगे? filled with the Holy Spirit, how can we worship Him in तो spirit? हमें इसके लिए पवित्र आत्मा का बहुत आवश्यकता है। Understand that you need the Holy Spirit तो to उसके लिए reside बहुत with you. कुछ प्रार्थना करना पड़ेगा, बहुत कुछ प्रायश्चित करना पड़ेगा। You have to repent, you have to pray that He fills you. आपको कुछ पैसा कुछ देने की जरूरत नहीं है, You cannot give money and ask and नहीं तो receive. आपको और कुछ देने के लिए कुछ आवश्यक नहीं You है। don't have to give anything to receive. आपको पूरा हृदय को परमेश्वर के पास देना है। Just give your whole heart to Him. अगर पूरा हृदय, आपका हृदय के अंदर कुछ भी अशुद्ध को कुछ कार्य हो तो सबको निकाल के आपका हृदय को पवित्र रखने से जो पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को तुम्हारे अंदर दे देंगे। Hallelujah. If you remove all that is unwanted in your life, that's when the Lord can give His Holy Spirit to reside inside of you. क्योंकि वो पवित्र है। Because He is holy. कम ऑन, सब जन बोलिएगा वो पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर है, He is a और holy जो God. पवित्र परमेश्वर को दर्शन कर ले तो हमें पवित्र होना आवश्यक And in है। order to see this holy God, we have to also be holy. आमीन। Amen. आज परमेश्वर जो कहते हैं तो तुम्हें पवित्र होना है, पवित्र मन से प्रार्थना करना है, पवित्र दिल से प्रार्थना करना है, पूरा मन से, पूरा दिल से, पूरा सामर्थ से परमेश्वर को हम स्तुति आराधना करना है। And the Lord is telling us even this day that when we worship Him, we must worship Him in spirit with all of our heart, soul, mind and strength. अगर पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा। In order to worship in spirit, remember you need the Holy Spirit to be with you. हम ये भी वचन पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह स्वयं बता रहा है, अगर तुमको स्वर्ग राज्य में आनंद का जीवन पाने के लिए क्या करना है, हमें पानी से और आत्मा से
बपतिस्मा लेना जरूरी है। And we see that Jesus is saying that in order to enter the kingdom or see the kingdom of God, he's talking about everlasting and eternal life. He says you have to be born again in water and अगर spirit. आप वहां पर जन्म नहीं हुए तो आपको पवित्र आत्मा मिलना मुश्किल है। And if you're not born again, you cannot see the kingdom of God. और उसके बारे में जो निकोदेमी जो है वो बता रहा है, हे प्रभु, हम पढ़ेंगे। Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. उसे रात को यीशु के पास आकर उसे कहा, हे रबी। Verse 4. निकोदेमुस ने उसे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? एक चीज वन मिनट, ये चीज हमें ये देखना है। वो वचन में जो लिखा है, अगर ये उम्र का जो मुदिर होने का बाद, मतलब जो एज होने का बाद, बुढ़ा होने का बाद, समझो उसको भी पवित्र आत्मा मिल सकता है। And understand, God is mentioning here purposely, and He's mentioning about an old person that how can he be born again? God can fill his spirit. Anybody of any age can receive the Holy छोटा Spirit. बच्चा भी पवित्र आत्मा पा सकता है। The child can also receive the Holy वो Spirit. उम्र का भी बुजुर्ग भी पवित्र आत्मा पा सकता है। Even though a man is old or aged, even he can receive the Holy Spirit. या कंटिन्यू करें। यीशु ने क्या कहा Verse था? 5. यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत जन बपतिस्मा लिया होंगे। आप जो देखने वाले, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे बच्चे लोग, आपने बपतिस्मा लिया होंगे पानी से। And maybe many of you have been baptized of water. लेकिन आपको ये आवश्यक है, पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा लेना बहुत आवश्यक है। Understand that you must be baptized with the Holy Spirit also. उसके लिए रोज हर दिन परमेश्वर से पुकारना पड़ता है। And each day call out to God and ask Him. अगर आप मांगने से परमेश्वर देने वाला And when है, you ask of Him, He will grant to तो you. सच्चाई मन से, सच्चाई दिल से आपका हृदय को शुद्ध कर लीजिए, तब जो पवित्र परमेश्वर तुम्हारा अंदर आ जाएगा। And when you wash yourself with the precious blood of Jesus, the Holy Spirit of God comes and resides with you. ये जो आवश्यकता है, आज का परमेश्वर आपसे जो बात करता है, पवित्र आत्मा के लिए आपको विनती करना है, उनके लिए आपको प्रार्थना लगाते रहना है। And even today the Lord is talking to you saying that the Holy Spirit of God is very necessary for your life and you have to pray and ask Him. अगर परमेश्वर के राज्य में जाना है तो पवित्र आत्मा का स्नान करना बहुत जरूरी है। And understand, if you want to enter the kingdom of God, you have to be born again of the Spirit also. हालेलुया। Hallelujah. आज अपने कलीसिया में दो जन परमेश्वर के लिए जो आज्ञा पालन करके बपतिस्मा लेने के लिए आज तैयार हो गया And है। we see that 2 members of our church are today obeying God's word and are willing to take और baptism. हम सब जन प्रार्थना यही करेंगे, परमेश्वर आप बपतिस्मा पानी से भी इनको बपतिस्मा दीजिए And we will pray that Lord, you baptize them also in और water. अपने पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा दीजिए And we करके। pray that they will be baptized also with the Holy Spirit. परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा करने के लिए तैयार है। And God is willing to baptize you with the Holy Spirit also. इसमें जो लिखा है हम वचन में पढ़ेंगे, लूका 11 अध्याय, लूका 11 के 9वां वचन पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 11 verse 9। So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह जो कहता है हमें मांगना जरूरी है। And Jesus says that I say to you, ask. क्यों? और जो खटखटा है, खटखटा मतलब अपने कोई भी दरवाजा किसी के पास जाके, दरवाजा आपको अंदर रूम के अंदर जाना है, तब
वो अंदर जो बैठना वाला किसको पता नहीं है, मतलब जो कोई आया बाहर खड़ा है, आप तो दरवाजा क्यों खटखटा करने से वो दरवाजा खोलेंगे। When you go to somebody's house, when you visit them, just standing out there, they will not know that you have come, but you knock the door so that they are aware and they open the door. और जो कोई चीज के बारे में आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब जो कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, ये सही रास्ता कहाँ है, आपको ढूंढना जरूरी है। And many a times it's very necessary to seek that what you're looking for, where is it found? अब गलत जगह में जाके क्या ढूंढेंगे? And if you go to the wrong place, what can you seek and find? जो जगह में जो देने वाले पवित्र आत्मा वो ढूंढने के छोड़ के और कोई भी जगह में जाके आप ढूंढने से आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेंगे। And where you can receive the Holy Spirit, if you do not go there and seek, if you're going around anywhere else and seeking, what will you find there? हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ये जो कहता है, तुम क्या वर्स 9 रिपीट, मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, हालेलुया। Hallelujah. और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। एक बार ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दे देंगे। थैंक यू जीसस। आगे, मैं तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। Hallelujah. आमीन आमीन। Amen. ये देख लो, अपने पिता, सादा अपना पिता अपने बच्चों को अच्छी चीज देने के लिए जानते हैं। And we see that a normal father knows to give good things to his children. जो दुनिया में जो पिता जो है वो जन कितने खतरनाक पिता होता है, There are many wicked and evil fathers also in this world, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीज देता है। but to their children they give good things. ये वचन में जो लिखा है, अपने सादा जो पिता है तुम्हारा बच्चों के लिए अच्छे चीज देते हैं। And here it says that you being evil also, you know how to give good gifts to your children. तुम्हारा परमेश्वर पिता परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देने के लिए कितना आसान में दे देंगे वो। And he says here that how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask अगर him. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारा बस क्यों आवश्यक है? And why do we need the Holy Spirit? जो दिखा रहा है, तुम मांगो, तुम ढूंढो, तुम खटखटाओ, मतलब जो परमेश्वर, इसका मतलब आपको ये अंडरस्टैंड होना है, एक बार मांगने से परमेश्वर देता नहीं है। And here it says that you keep asking, keep seeking and keep knocking, because it's not like just you ask once and you receive. हाँ, ये पॉसिबल है, कभी एक सेकंड में भी परमेश्वर दे सकता It's है। possible that you ask within a second also God fills you with the Holy कभी Spirit. आपका मन पूरा, हृदय पूरा परमेश्वर के अंदर दे दिया तो आप फर्स्ट डे आप जो मांगे उसी समय में ही परमेश्वर आपका आत्मा It's से possible कर even सकता है। that with all of your heart when you ask Him, even that first day when you asked Him also you can receive the Holy Spirit. हमें Amen. तो हमें क्या करना है? पवित्र परमेश्वर के जो आत्मा आने के लिए हमें सबसे पहले हमें पवित्र होना आवश्यक And है। in order for the Holy Spirit of God to reside inside of you, you need to live also a holy life. तो और जो पवित्र आत्मा आने के बाद हमें क्या मिलता है? And when the Holy Spirit of God comes inside you, what do you receive? हमें शांति मिलता है, He gives you peace. परमेश्वर का अभिषेक मिलता है, He gives you anointing. परमेश्वर का वरदान भी मिलता He है, gives you the gifts of the और Spirit. परमेश्वर का ज्ञान आता है, He gives you wisdom. परमेश्वर का बुद्धि आता He है, grants you और knowledge. परमेश्वर का फ्रूट्स, जो कितने फ्रूट्स है? The fruit of the Spirit also. परमेश्वर का जो फ्रूट्स है सब हमें मिलता है। And He gives you the fruit of the Spirit. और उससे अधिक एक चीज भी हमें मिलने वाला है, क्या है? And above that also He gives you something. What is हम it? वचन में पढ़ेंगे, रोमियो 8वां अध्याय 8वां वचन में पढ़ेंगे, रोमर चैप्टर 8 वर्स 26 and 27। इंसान बहुत कमजोरी होता है, कभी कभी अपने टेंशन में क्या प्रार्थना करना है, कैसा प्रार्थना करना है, कैसा करना है, हमें सब कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है। Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now, He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है।
समझ लो पवित्र आत्मा क्या करता है? सहायता, He gives us help in our weaknesses. हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमें अगर कठिन समय में, हमें प्रॉब्लम में, हमें वीकनेस में, हर समय में पवित्र आत्मा हमें सहारा देता In our है। weakness, in our troubles, in everything that we go through, He is our helper. हमें किस तरफ मांगना है हमें पता नहीं है, And many a times we are not aware of how or what we must ask of God. क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, We do not know how to intercede or how we must pray. परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देख लो आपके लिए यीशु मसीह भी विनती करते हैं, We see that Jesus had prayed praise for you. और जो पवित्र आत्मा भी आपके लिए प्रार्थना करते And हैं, it says that the Holy Spirit of God intercedes for क्योंकि you. हमें पता नहीं है किस तरह से प्रार्थना करना है। And many a times we are not aware of how we ought to pray. आगे हम वचन में पढ़ा है तुम मांगो मैं देंगे करके, And first we earlier read that Jesus said, ask and you shall receive. और I'll किस give you. तरफ मांगना है हमें पता नहीं है। And many a times we don't know how to ask also. अभी समझ ले एक पिता का बस, एक डैडी के बस कुछ पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मांग रहे हैं, And suppose that you want to ask something from your father, ए डैडी तुम्हारा पैसा मेरे पास दे दे करके ऐसा मांगने से देंगे? and if you just command our boss over and say, Dad, give me the money, you think he will give it to you? डैडी आपको मैं इतना जो याद है सब कुछ मेरा शेयर मेरे दे दे, And you say, Father, you have so much property, give me my share. नहीं तो कोई जगह में जाके केस करके मतलब जबरदस्ती पिता से मतलब मेरा शेयर दो मेरा ये दो करके ऐसा मांगे। And suppose that the son goes and puts a case and says, anyhow, with he forces and gets his property or share. तो अगर सही तरीका से मतलब जो अच्छे रीति से उनसे मांगे तो वो दे देंगे। If he asks in the right way, the right manner, surely the Father will give it to him. लेकिन जो इस तरफ से हमारा पिता परमेश्वर बस किस तरफ से मांगना है, कौन सी समय में मांगना है, किस तरह में हमें जाना है तो हमें पता नहीं है। इसके कारण पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करेंगे। And we see that we are not aware, we do not know how we ought to ask, and that's the reason the Holy Spirit of God intercedes for us. और आगे 27. और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। क्या लिखा अभी क्या पढ़ा? He makes intercessions for the saints according to the will of God. और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए, पवित्र लोग सब जन बोलिएगा, पवित्र लोगों के लोगों के लिए लिए पवित्र आत्मा आपके लिए गिनती करने से तो आपको क्या होना है? पवित्र होना है। and you want the Holy Spirit of God to intercede for you, you have to be a saint, that is the holy people of God. क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता परमेश्वर के है। इच्छा के अनुसार वो प्रार्थना करते हैं। And he prays, he intercedes for the saints according to the will of God. तो हमें इसके कारण हमें क्या होना है? पवित्र। सब जन बोलिएगा, पवित्र होना मेरा है। भाई मेरा बहन आप देखने वाला है, अगर आप घर पे बैठे तो भी आपको मन के अंदर एक बार आप चेक कर लीजिए आप पवित्र जीवन बिता रहे कि नहीं। My beloved, all those watching us, all seated here, just check your heart and see, are you living a life that is holy? क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा आपके लिए कब प्रार्थना करेंगे, आप पवित्र हो गया तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। And when you live a holy life, you are a saint of God, that's when he can intercede for you. आप मसीह का नाम आपका होगा You may have a Christian name, और कोई कलीसिया में जाते होंगे maybe attending church, और रोज प्रार्थना करते होंगे, and you're praying. लेकिन आपको ये देखना है अगर पवित्र जीवन आप बिताएंगे तो वो पवित्र परमेश्वर आपको अपना आत्मा भी देंगे और आपके लिए विनती करेंगे। And when you live a holy life, a saintly life, God will give you His Holy Spirit and He will intercede on your behalf. आज परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के देने के तैयार है And even today the Lord is willing to give you His Holy और अभी Spirit. हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा की प्रार्थना And करेंगे। even today we will pray for the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा अभी हम सबको पढ़ाने वाला है। And we are going to pray that He comes inside, He वो comes to पिता us परमेश्वर today. अपने आत्मा को हमारे अंदर देने वाला है। And the Lord will give us, grant us His Holy जो वो Spirit. जन पवित्र आत्मा पाए तो भी आज उनसे और मांगो, लॉर्ड फिल मी मोर एंड मोर करके आप परमेश्वर से पुकारो। And those who have received the Holy Spirit even before, you can ask Him for more of the anointing. और अभी तक पवित्र आत्मा पाया नहीं तो अभी ये समय है प्रभु के लिए, प्रभु मेरा हृदय पूरा जो गंदा था
डर्टी था साथ निकाल दिया प्रभु, अभी मैं पवित्र होना चाहता हूँ, आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने दो करके पुकारो। And if at all you want the Holy Spirit, ask Him, Lord, wash me from all my uncleanness and everything that's unwanted inside of me, and give me your Holy Spirit. Let's all सब जन खड़ा rise हो to our जाएंगे, feet. सब जन अपना मन को, अपने अंदर हृदय को शुद्ध करना है, ये समय आ गया है। And even today it's time of repentance. It's time for cleansing. So you get yourself cleansed by the blood of Jesus. हम वचन में जो पढ़ा है, आत्मा से सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने पुकारा है। And the word says that we have to worship the Lord in spirit and truth. और ये जगह में अभी पवित्र आत्मा मंडला रहा है, And the Holy Spirit of God is with us today, और even उसका now. प्रेजेंस हम सबको ऊपर खड़ा है, And the presence of the Lord is with और us. प्रभु यीशु मसीह देख रहा है मैं किसको मैं पवित्र आत्मा दूं करके। And Jesus is watching that who should I give my Holy अपने Spirit to? मन को, अपने कठिन दिल को निकाल के प्रभु से मांग रहे, मेरा प्रभु मुझे आपका आत्मा से भर लीजिए करके। Remove or set aside your heart, hardened hearts, stony hearts, and say, Lord, please fill me with your Holy Spirit. अरे हमें यही पूछना है, ये परमेश्वर आपने जो हमें अभिषेक जो किया, इतना अभिषेक हमें कम है, और आपका अभिषेक से और बढ़ करके प्रभु And से those who पुकारना have है। received the anointing, you say, Lord, how much I've received is not enough. I need more of the anointing. मेरे प्रियो, आज का ये समय आया है, ये परमेश्वर का आत्मा आपको देने के लिए परमेश्वर तैयार है। And even today, my beloved, the time has ओ come. रियो God is रोशे willing to खाना give you खाना His Holy खोलिए, Spirit. आपका हृदय खोल दीजिए। Open your hearts to Him. आप जो जगह में बैठा है, आप खड़ा हो जाइए, इसी समय में परमेश्वर का नाम से परमेश्वर को ऊपर पुकारना है। Come on, call out to the Lord wherever you are and say, Lord, please come and fill me with your Holy ये Spirit. समय वापस आना मुश्किल है, And your times you do ये not get समय this में chance अभी जो again. परमेश्वर आत्मा से भरने के समय आया And है, even today is the time that the Lord will fill you with the परमेश्वर Holy आपको Spirit. छूने की समय आया है। Time that He will touch you. एक बार आपको क्या करना है, आपको 2 मिनट का समय देता है, आपको मन के अंदर से एक बार दिल की चेक कर लो, अगर कोई भी पाप किया तो परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी कार्य सोच लिया तो भी परमेश्वर के ऊपर समर्पण करके, मेरा परमेश्वर मुझे क्षमा करो, And if मैं it's पापी है। anything that is displeasing to the Lord, I give you 2 minutes. Just repent of your sins. Ask Him, Lord, I am a sinner. Forgive me of my sins. Just repent to Him and get और जो पुराने right जीवन His में sight. अगर परमेश्वर पहला आपको पवित्र आत्मा छू लिया तो भी परमेश्वर को और अभी नया स्पर्श होने के लिए, नया टच करने के लिए अभी परमेश्वर मांग लो। And ask Him for a new touch, a new anointing from the Lord. अभी जो वचन में जो पढ़ा था, जो पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए प्रभु पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है करके, वो पवित्र आत्मा पाने के लिए हम सब तैयार करेंगे अपना। And the word of God we read just now that God is willing to give His Holy Spirit to those who ask. प्रभु से माफी मांगो, प्रभु से माफी मांगो, जो आज शुरुआत से लेके वर्शिप से लेके अभी तक परमेश्वर को पवित्र आत्मा हमें बार बार सबको कहते हैं, हमें माफी मांगे, हमें नया जीवन बनाना है, मन फिरा के परमेश्वर का अपना लेना है, पवित्र आत्मा को हमें पाना है, पवित्र आत्मा का वचन को द्वारा हमें सबको मरना है करके प्रार्थना करके। रीला बोशी कला बोरी दला खबरी कसत तला खबरी आमा भूरे ला बोधन दला हरी शितला खबरी आमा भूरे ला बोशत दला खबोशी अला खबा हिखला खबोशत दला खबोरी आमा भूरा बला बोशी दला खबा हिमला बोशत दला खबा। सब लोग अन्य भाषा से बात करेंगे और परमेश्वर से पूछो, हे परमेश्वर आपका आत्मा से भरो, प्लीज टच मी लॉर्ड, मुंह खोल के पुकारो, सबसे मुंह खोल के पुकारो, तुम मुंह खोल के पुकारो तो परमेश्वर तुम्हारा अंदर जीवन का नदी देने की तैयार है, प्रभु तुम्हारे स्पर्श करने की तैयार है, नया आशीष देने की तैयार है, नया अभिषेक देने की तैयार है। बड़ी लबोशिन का लगाबा हिम बलबा से तल्ला का बली का तबा उखा लगा लगा वो शिंदरी का बला खाली का लॉर्ड थैंक यू जीसस होली लबोशिन का लगाबा हिल लबो से तल्ला का प्लीज जीसस सबको क्षमा कर दीजिए प्रभु क्षमा कर दीजिए प्रभु, हर पापों को, हर आदतों को क्षमा कर दीजिए प्रभु, शुद्ध कर लीजिए, शुद्ध कर दीजिए प्रभु। और लबोशिन का लगाबा हिम लबोशिन का लगाबा हिम बला लबोशिन का लगाबा ये लबा प्रभु, पुराना जीवन को सब कुछ छोड़ता हूँ प्रभु, पुराना पापों को छोड़ता हूँ प्रभु, पुराना गलतियों को छोड़ता हूँ प्रभु, नया जीवन दीजिए, नया जीवन दीजिए प्रभु, नया जीवन दीजिए प्रभु आपका पवित्र लहू से शुद्ध कर दीजिए प्रभु, आपका पवित्र आत्मा से प्रभु इसी वक्त भर दीजिए प्रभु। लॉर्ड आई एम प्रेइंग फॉर ईच एंड एवरीवन लॉर्ड, प्लीज टच ईच एंड एवरीवन बाय योर होली स्पिरिट लॉर्ड।
आपका आत्मा से भर दीजिए प्रभु, और भर दीजिए प्रभु, और सामर्थ दीजिए प्रभु, हमारी सेवा कर दीजिए प्रभु। आपका नाम ऊंचा उठा लीजिए। ओ रीला बौशिक का लगाबा प्रभु, आपका वचन के द्वारा आपने जो बात किया, जो तुम मांगेंगे तो मैं जीवन का पानी तुमको पिलाएंगे करके You said that all mass I'll give the living waters. Hallelujah. आपका आत्मा का, आपका पवित्र वचन को पूरा विश्वास करता था मांग रहे हैं प्रभु। आज सबके ऊपर भर दीजिए। टच लॉर्ड जीसस, टच लॉर्ड जीसस, आपको पवित्र आत्मा से छू लीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा से छू लीजिए प्रभु। एक नया जीवन दीजिए प्रभु, नया कार्य कर लीजिए प्रभु, नया चंगाई कर लीजिए प्रभु, नया चमत्कार कर लीजिए प्रभु। प्रभु सिर्फ आपका नाम हर परिवार के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर ऊंचा उठाने की मदद कर लीजिए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सुंदर समय के लिए आपने धन्यवाद देते प्रभु आपको। जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, हर जन के जीवन में प्रभु नया कार्य कर लीजिए। आप हमारा प्यारा परमेश्वर है। हमारा पापों के लिए, हमारा आदर्मों के लिए आप हमारे दंड को आपने उठा दिया प्रभु, आपने आजाद कर दिया प्रभु। आपका बेटा बेटी बनाने के लिए आपने दया किया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन परमेश्वर इस सबके जीवन में कार्य कर लीजिए, सबका परिवार में कार्य कर लीजिए। जो जो जरूरत के लिए इतनी सालों से प्रार्थना जो करते हैं, विनती करते हैं, आज आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हम सब के लिए, आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक नया कार्य आज के दिन से शुरुआत आपने कर दी है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर शैतान का बंधन को, हर रुकावट को यीशु मसीह के नाम से हम बाहर निकालते हैं। हर बीमारी को, हर कष्ट को बाहर निकालता है यीशु मसीह के नाम से। आपका नाम महिमा के लिए हम गिनती करते प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो जो मांगा, जो जो आत्मा के लिए मांगा प्रभु, आप सब कुछ दीजिए प्रभु। आपने दे दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सब परिवार में शांति, समाधान और खुशियां, आनंद से भर लीजिए प्रभु। कोई भी चीजों से कमी कटी ना आने दो प्रभु। आज बैप्टिस्मा देने वाले 2 व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, इनके जीवन में कार्य कर लीजिए, इनका परिवार से कार्य कर लीजिए। जो काम जो करते हैं प्रभु, उसे उन्नत स्थान दीजिए, एक नया जीवन दीजिए। एक दुनिया का गंदगी से, दुनिया का चाल चलन से, दुनिया का पापों से इनको मिलना नहीं चाहिए प्रभु। ये नया जीवन, पवित्र जीवन बिताने की आज से मदद कर लीजिए प्रभु। और ये दोनों को परिवार को भी हम आशीष देता हूं प्रभु। वो परिवार में भी खुशियां दीजिए, आनंद दीजिए प्रभु। आपका आनंद से भर दीजिए प्रभु। आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु मसीह का आदि पवित्र नाम से सुन और कबूल करो हमारे स्वर्ग पिता। Amen. आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम बैठ जाएंगे। Hallelujah. Thank you so much for everyone, the ones who have joined us online. जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज का वचन जैसे हमने सुना है, विश्वास करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है, एक नया अभिषेक और एक नया वरदान के साथ आपको भरा है। हालेलुया। थैंक यू सो मच। यू कैन कंटिन्यू टू बी कनेक्टेड विद अस ऑनलाइन on Facebook and YouTube. May the Lord bless you all.